इस कार्यक्रम में अपने प्रदेश के माननीय प्रदेश सचिव श्री नकुल कुमार शर्मा जी उपस्थित हैं। मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप बाल्यकाल से संघ के स्वयंसेवक, इस योजना में आप पूर्व छात्र भी हैं और अभी आप प्रदेश सचिव के नाते आपका मार्गदर्शन कार्यक्रम में अपने क्षेत्र के पूर्व सचिव श्री दिलीप जी भी उपस्थित है। आप शिक्षा के क्षेत्र काफी लंबा अनुभव और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमान भरत पूर्वे, प्रदेश मंत्री, भारतीय शिक्षा समिति दक्षिण बिहार, आपके द्वारा किया जा रहा है। आपका भी स्वागत अभिनंदन है। इस क्रम के संयोजक मार्गदर्शक अपने श्री ललित कुमार राय जी हैं। आप विभाग निरीक्षक हैं मुजफ्फरपुर विभाग। आपका भी स्वागत और अभिनंदन है। आप सबों का मैं स्वागत अभिनंदन करते हुए मैं इस परिचय के कार्यक्रम को यहीं समाप्त करता हूं और आगे कार्यक्रम के लिए संचालक महोदय से निवेदन है आप अपने कार्यक्रम का संचालन करें। थैंक यू वेरी मच आचार्य जी। Well, friends, we all know that in this dire situation of pandemic, this corona malady, when it was impossible to open up schools and teach our students. डिवाइड अलग रखिए प्रवीण जी, 2 डिवाइड एक साथ रखे हो। So it was very hard to open up schools and continue with the classes on a regular basis. The online was the only means and only medium to go for it. It was a new thing for most of us, and it was very hard for us to cope up with the stress that we had to face during these online classes. But our Lok Shiksha Samiti, Honorable Lok Shiksha Samiti, kept on organizing different classes and different training programs for all of us to get acquainted and accustomed of the tools, the technique, and the use of these online systems of education, the use of our cell phones as the educational tools, as the teaching means. In the series of these training programs, today's program is also one of them. This is dedicated to spoken English as a means of communication for the teachers who are going to benefit much. So we have arranged under the ableist guidance of our Pradesh Sachiv, Shriman Nakul Kumar Sharma ji, and the pioneer, the Margdarshak of English, Shriman Lalit Kumar Rai ji, we were guided to collect and gather from all around the ableist teachers to guide us, to help us, and to encourage us through their experiences and wage. And today we have with us one of the best teachers and principal of this country,
I am honored to introduce him to you. This is Mr. Prem Singh Khimta, the principal of Sarv Hitkari Vidya Mandir, Maler Kota Public Senior Secondary School, affiliated to CBSE school. He is MA in English and B.Ed from Punjab University, Chandigarh, and his specialization is in linguistics and phonetics. He has done Bachelor of Mass Communication, BMC, from Punjab University, Chandigarh. Also, he is State Prabhari, Shaikshik and Prashikshan Sarv Hitkari Shiksha Samiti, Punjab. Awarded Best Principal Award by Youth Services by Government of Punjab for organizing Best Residential NSS Camp. Our resource person today has got 2 state awards for best result in the state of Punjab by Government of Punjab to school under his principalship. He is a permanent member of CBSE school inspection team and mentor of Hubs of Learning CBSE. He is a CBSE observer in CTET and NEET. Awarded appreciation certificate by Smriti Irani, the then HRD minister, in 2015 also for best board results. Awarded state best principal of Sarv Hitkari Shiksha Samiti Punjab, and he has published a book on handwriting also. Such a person is, we are blessed that he is with us. Now I hand over to him. Mr. P.S. Khimta ji will take over from here, and he is going to tell us something about the topic importance of pronunciation in spoken English and how to improve it. Over to Sri Prem Singh Khimta. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. विद्या भारती के सभी प्रमुख श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कार्यकर्ता बंधु भगिनी, प्रधानाचार्य, बिहार लोक शिक्षा समिति के सभी आचार्य और दीदी, विशेषकर जिन लोगों ने इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए निमंत्रण दिया है, उनका भी मेरी तरफ से आभार है। आवाज मेरी इधर आ रही तो बता देंगे। यस, आ रही है स्पष्ट? जी आ रही है सर। So, as your topic is concerned related to pronunciation, the importance of pronunciation in language, not only English, even in Hindi, Punjabi, Malayalam, any language that you speak. It is always a great confusion among the speaker of English that it is not spoken as written and not written as spoken. ये बहुत बड़ा confusion है सबके बीच में. The entire country is suffering because of this disease. बीमारी एक बहुत बड़ी है. Because from the beginning, the English is not being taught in our schools, in our system as it should have been taught. The wrong pronunciation, wrong words spoken by students and teachers at large, and they go to the straight way to the students. So we are assembled here to make certain such clarities which are always in our pronunciation. The mistake that we commit in pronouncing any word, particularly I all emphasize on those teachers who are teaching in junior sections. If you start from the Shishu Vatika or junior section, first, second, third, fourth, fifth, once your pronunciation is good, it is going to last forever in your life. Once it is wrong, once it is on your tongue, then it is never going to leave you.
एक बार जुबान पे शब्द आपके फिर वापस जाते नहीं हैं, वो पक्का हो जाते हैं, मित्रता कर देते हैं जीभ के साथ। तो हम आज उसी के लिए यहाँ बैठे हैं, तो मैं कुछ पीपीटी शो करूंगा। There are certain words written on those PPTs and you will definitely go through them. But before going to this, I'll tell you one thing, that English is language of sound. ये भी एक बड़ा कंफ्यूजन है कि हिंदी की तरह अंग्रेजी नहीं बोली जाती, संस्कृत की तरह इस भाषा के अंदर जो बोलते हैं वो लिखा नहीं जाता, जो लिखते हैं वो बोलते नहीं। जैसे मैं एक शब्द बोलता हूँ वन, WON, वन। अगर मैं ये वन ऐसे बोलूं तो सबको लगेगा जीतना होगा इसका मतलब। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आई नीड वन बुक, तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे एक किताब चाहिए, वन मतलब एक वाला किताब। तो इसका मतलब दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक हुआ। लेकिन जो वन है, WON है और ONE है, इस ONE को ही, इसका ही प्रोनाउंसिएशन वन है। और वन यहाँ पर, W यहाँ पर एक सेमी वोवल है। इस करके इससे पहले हमेशा ही हम जब एन दो का यूज करते हैं, आर्टिकल बोलते हैं, तो हम ए का ही प्रयोग करते हैं। आई हैव, वन, ये अलग चीज हो जाएगा। लेकिन देयर इज अ वन वे ट्रैफिक, यहाँ पे आ हो जाएगा। तो इस तरह से आज कुछ शब्दों को हम सीखने की कोशिश करेंगे। एज आई सेड, इंग्लिश इज लैंग्वेज ऑफ साउंड्स, हिंदी इज लैंग्वेज ऑफ लेटर्स। बस एक बड़ा अंतर ये समझेंगे तो दोनों भाषाओं के प्रति ही सम्मान बना रहेगा, क्योंकि भाषा किसी भी बाउंड्री की, किसी सीमा की गुलाम नहीं होती और किसी जुबान की गुलाम नहीं होती। हमने सीख ली भारत में, तो हम उनसे भी ज्यादा अच्छा बोलते हैं दुनिया में आज, जो दुनिया में बाकी सब जगहों पे जहां इंग्लिश बोली जाती है। इसी करके भारत के बच्चों के लिए एक वरदान है ईश्वर का कि दे कैन लर्न एज मेनी लैंग्वेजेस एज दे वांट टू लर्न, व्हिच द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कैन नॉट डू लाइक दैट। दैट इज द बिगेस्ट ट्रेजेडी विद अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। भारत के बच्चे दुनिया की तमाम भाषाओं को सीख सकते हैं जल्दी, बाकियों से भी, लेकिन बाकी लोगों को सीखना बहुत मुश्किल है। आप देखें, वी कैन, आज हम कुछ शब्द करेंगे तो यू विल फाइंड दैट वी आर स्पीकिंग लाइक अ ब्रिटिशर्स, अमेरिकन्स। लेकिन अगर उनको हिंदी बोलनी हो तो कितनी बड़ी हिंदी में MA वगैरह करने के बाद भी, दोज हु आर बोर्न ब्रिटिशर्स, इंग्लैंड और अमेरिकन, दे कैन नेवर स्पीक हिंदी लाइक बिहार, उत्तर प्रदेश, जहां मध्य प्रदेश हिंदी का ज्यादा मातृभाषा के रूप में बोली जाती है, नहीं बोल सकेंगे उस तरह की। इवन की जो पंजाबी स्पीकर्स भी हैं, जिनके बच्चे पंजाबी मीडियम पढ़ते हैं, वो भी हिंदी को ज्यादा शुद्ध नहीं बोल सकते हैं, मिला के बोलते हैं। तो मैं सीधा ये अब आपको उस टॉपिक पे आता हूं। देखिए, इंग्लिश के अंदर ये एक प्रोनाउंसिएशन के लिए कुछ साउंड्स बने हुए हैं। आप में से बहुत सारे दोस्त आर इंग्लिश टीचर्स और नो इंग्लिश, तो उन सबको ये मालूम होगा कि देयर आर 44 साउंड्स इन इंग्लिश, जबकि लेटर 26 है, साउंड 44 है। तो जिसमें से 20 साउंड तो वॉवल के ही है, लेकिन हम सबने वॉवल तो 5 ही किए हैं कक्षाओं में, तो साउंड 20 कैसे हो गए? क्योंकि वो 20 साउंड हमको करवाया नहीं कभी जिंदगी में किसी ने, टिल वी रीच्ड इन सम फोनेटिक क्लास ऑफ इंग्लिश, ओनली देन यू डू दीज थिंग्स। तो अब उसमें क्या मुसीबत आई कि भी हमको जब साउंड नहीं करवाए गए, हमने तो एक सीधा ही सीख लिया, जैसा हमारी दीदी ने कहा, जैसा किसी हमारे आचार्य ने कहा, वी स्टार्टेड लर्निंग लाइक दैट। तो वो सबसे बड़ा एक हमारे साथ एक सबसे बड़ा अपराध हो गया भाषा के वो सीखने का। अगर ये फोनेटिक्स के कुछ सिंबल्स, कुछ हमने साउंड सीखे होते तो हमारी भाषा के शब्द ठीक होते। लेकिन फिर भी घबराने की जरूरत नहीं है, आजकल डिक्शनरीज बड़ी अच्छी आती है, यूट्यूब के ऊपर बड़े अच्छे वीडियोस बने हुए हैं, तो हम वहां से भी अपने इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। माई रिक्वेस्ट टू पर्टिकुलरली जूनियर सेक्शन टीचर्स who are teaching English in their schools, they must go through those sounds. उनको सीखने हैं वो साउंड्स और उनको उसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखना। अगर आप सारा भी नहीं सीख सकते तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू काइंडली टेक आउट दोज ऑल वर्ड्स विच आर देयर इन योर
in your book, and after selection of the words, go to dictionary, try to find out from there, then speak before your children correct English. उसको हम मानेंगे कि इस टीचर्स ने मेहनत की है। सभी जगह पे इंग्लिश के फोनेटिक्स को जानने वाले नहीं होंगे, लेकिन बहुत लोगों ने बड़ा अच्छा इम्प्रूव किया है। और मैं तो विद्या भारती के कई अपने कार्यकर्ताओं को जो अनेक वर्षों से इस पीड़ा से प्रभावित है कि अंग्रेजी हमारे स्कूलों में बच्चों की अच्छी नहीं है, उसका एक मेजर कारण ये भी है। उसको ठीक करेंगे तो भाषा के रूप में ही हम इसको अच्छा करेंगे। हम कल्चर की तरफ नहीं जाने वाले लोग हैं। तो मैं सीधा ही अब अपना एक स्क्रीन शेयर करूंगा, तो आप उसको देखते रहें। और साथ साथ में वैसे तो बाद में शायद ये इसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है, नहीं तो मैं आपको ये आपके ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा। आज मैं केवल ऐसे शब्द विच वी स्पीक एवरी डे, हर सेंटेंस में आएगा, हर जगह आपको दिखेगा, उनको सिर्फ एक साउंड करवा रहा हूँ 44 में से। उस एक साउंड से भी आपका एक इतना बड़ा आपके पास लिखा का खजाना आ गया हमारे पास कि हमने बहुत कुछ उसमें से सीख लिया। तो मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन को, तो उस स्क्रीन पे आप देखेंगे। और ये आपको स्क्रीन नजर आ रही है ना? जी आ रही है। ठीक है, थैंक यू। वेलकम सर। तो बस सीधा ही मैं इस पे आपको स्क्रीन देख रहे हैं, तो आप देख रहे हो सबसे ऊपर कि इट इज इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश। एक स्पोकन इंग्लिश में एक धारा बह रही है पूरे देश भर में, वो है कि अंग्रेजी सीखने के लिए 1 वीक में सीखे, 2 सप्ताह में सीखे, 4 में सीखे, लेकिन स्पीकिंग इंग्लिश विद प्रोनाउंसिएशन, तो ये आपको और भी अच्छे रिजल्ट्स देगा। उसी के ऊपर हम आज इस क्लास को लेके चल रहे हैं। देखिए आर्टिकल्स में ये 3 चीजें हैं, ठीक है? इसको ए बोलते हैं, ये एन है, ये द है, और दी भी बोलते हैं कभी कभी। आई वुड लाइक टू मेक दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि आप इसको देखें जरा कि किस प्रकार से इसमें ये 3 लेटर्स भी हम ठीक प्रकार से अगर बोलेंगे तो पहला लेटर इसमें ए है। इस ए के कम से कम 3, 4, 5 उच्चारण हैं इंग्लिश के अंदर। मैं आज आपको इस उच्चारण वाला करवा रहा हूं। ये जो आप उल्टा देख रहे हो यहाँ पर ई, इस उल्टे ई को आपको करवा रहा हूं। इस उल्टे ई को क्या बोलते हैं? इसको औ बोलते हैं। इस प्रकार से एक औ होता है ना, और छोटा सा ऊपर वहां पर ऐसे चंद्र सा बना होता है औ। आप तो बिहार के लोग हैं, बड़ा शुद्ध बोलते हैं हिंदी को, तो मैं तो हिंदी के इसलिए बनाए हैं कुछ चीजें ताकि आपको ये सीखने में आसानी हो। अब देखिए मैंने यहाँ पे ए जो लिखा है, अब ए और अ में क्या फर्क है? एक बड़ा फर्क तो ये है कि व्हेन यू स्पीक दिस लेटर, इसको जब आप सिंगल बोलते हो कहीं पर भी, जैसे यहाँ मैंने लिखा अ बुक, आपको सिर्फ इस पे ही कंसंट्रेट करना है। आज ये जितना मैं करवा रहा हूँ सिर्फ इस ही साउंड को करवाऊंगा। इसको अंग्रेजी का साउंड है ये अ साउंड करवा रहा हूं मैं। अ बुक, बुक भी आप छोड़ दीजिए क्योंकि इंग्लिश का जो प्रोनाउंसिएशन है वो BUK या बुक का, बुक ऐसे करके बोलना, बुक नहीं बुक, अ बुक। तो ये जो अ मैंने ये कहा आई हैव अ बुक, ये अ मैंने बोला, यहाँ ए नहीं बोला। इस करके ये कृपया ठीक करें कि नेवर स्पीक ए व्हेन यू हैव दिस ओनली सिंगल लेटर आ रहा है केवल, तब नहीं बोलना आई हैव अ बुक, आई हैव अ पेन, ओके? नेवर स्पीक लाइक दिस। तो ए ना बोले, उसमें आई बोले ऑलवेज। जैसे मैं कह रहा हूं आई हैव अ बुक, ये नहीं बोलेंगे आई हैव ए बुक, रॉन्ग। लेकिन जब मैं इसको अ में बोलूंगा आल, ए के साथ 2 एल लग गए, आल द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, वहां उसको आ ही बोलेंगे, और नहीं बोलेंगे। अब ये अलग आ रहा है, इकट्ठा नहीं आ रहा, अलग से आ रहा है। इसी प्रकार से एक एप्पल शब्द है, एप्पल, वहां पे ए का उच्चारण आ रहा है, एप्पल, है ना? ए का उच्चारण आ रहा है ना,
तो आपको जो कुछ बताना होगा तो आप जरा उसमें लिखते और बताते रहें, जो आपका चैट बॉक्स है, तो मैं वहां पे देखना शुरू करूंगा। इसके बाद एक शब्द आ गया एन, इसको एन बोलते शब्द, ऐसा लंबा करके बोलते हैं। आई हैव एन एप्पल, नो ऑन, आई हैव एन एप्पल, आई हैव एन एप्पल। तो एप्पल को ऐसे बोलेंगे एन ऑरेंज नहीं बोलेंगे, अन ऑरेंज ऐसे करके। ये दूसरा शब्द देखो, यहाँ ए लगा हुआ ना इसमें, ऑन, आनग, एन एग नहीं बोलेंगे, आनग ऐसे करके। THE है। ये जो भी बंधुवर बोल रहे थे तो अच्छा लग रहा था मुझे कि वो द का प्रयोग कर रहे थे ज्यादा उसमें, क्योंकि वहां सारे शब्द ही कॉन्सोनेंट से रिलेटेड थे। अब मैं इसमें बताता हूँ कि कई बार दी बोलते हैं तो कई बार द बोल लेते हैं। जब और द और दी का मसला आता है तो क्या संकट खड़ा होता है? संकट ये खड़ा होता है सबके सामने कि कहीं दी बोलते हैं, कहीं द बोलते हैं। स्टूडेंट्स कई बार पूछ लेते हैं इसको कि कहीं पे द बोल रहे हैं, कहीं पे दी बोल रहे हैं, व्हाट इज द डिफरेंस? तो जिसको तो आएगा वो बता देगा, नहीं तो कहेगा भी दोनों ही ठीक है। दोनों ठीक नहीं है, दोनों ही गलत अगर ठीक प्रकार से इसको ठीक यूज ना किया जाए। बोथ आर इनकरेक्ट इफ नॉट यूज इन अ प्रॉपर वे। सो सी हियर, ये एक आपको ओद है, ऊपर एक कांटा लगा रखा है, इसको मैथ वाले लोग थीटा बोलते हैं। तो TH का उच्चारण थीटा होता है, थी, ठीक है, दी नहीं हुआ, थी, पीछे आई लगा दिया तो दी बन गया। तो बिफोर अ वावल, वावल से पहले हम इसका उच्चारण, जैसे यहाँ पे आर्मी शब्द है ना, आर्मी, ये आर्मी है शब्द, ये पीछे विसर्ग लगी है, रॉ यहाँ से निकल गया, तो दी आर्मी है ये शब्द। तो थी आर्मी, थी आर्मी, हम तो दी आर्मी बोले तभी काम चल जाएगा, दो आर्मी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे वावल आ रहा है दो के बाद, ठीक है। तो ये एक अच्छा चीज हमारे को सीख जाएंगे, तो जिनको आते हैं उनको बहुत बढ़िया है, जिनको नहीं तो उनके लिए मिल गया एक चीज। ऐसे ही द के बाद अगर कॉन्सोनेंट आता है, जैसे ये जो टेबल शब्द है, यहाँ पे टेबल दिख रहा है ना, यहाँ जो टेबल शब्द है इसमें आपको क्या करना होगा कि ये कॉन्सोनेंट आ गया, टी इज कॉन्सोनेंट, और ये जो टेबल है, टेबल, तो इसमें मैं दो चीजें और साथ में जोड़ के आपको बताता हूं। यहां आपको EI दोनों इकट्ठे दिख रहे हैं और BL है पीछे, बस इतना ही है केवल। इसका ये मतलब हुआ, ये भी प्रोनाउंसिएशन ही है, लेकिन मैं तो अभी सिर्फ यही करवा रहा हूं आपको, ये वाला जहां ये उल्टे वाला E आएगा उसको मैं करवा रहा हूं अभी आपको। तो ये देखिए क्या बन गया, छी, था, तो ये ओ आ गया यहाँ पर, यहाँ EI, क्योंकि ये मैंने वोबल से पहले किया, और यहां मैं कर रहा हूं कॉन्सोनेंट से पहले, तो क्या बन गया, थ, जो पहले भी बोला भाई साहब ने एक जगह, बहुत जगहों पे, द बिफोर अ कॉन्सोनेंट, द टेबल, ओके। अब जब द टेबल जब मैं कर रहा हूं तो उसका निश्चित तौर पे मतलब ये है कि टी को भी हमारे को ठीक बोलना पड़ेगा। अब टी का उच्चारण मैं साथ में बता देता हूं जितना कुछ आ सकता है बीच में। तो उसमें एक चीज ये, इसमें लाइनें ना लगाएं कोई ऊपर से, एक चीज मैं इसमें ये जोड़ के बताता हूं आपको, जो टी शब्द है इसको टॉ के रूप में ना बोले कभी भी, डोंट स्पीक टी लाइक टॉ। तो टी को जब ए इसके बाद आता है टेबल, तो ये शब्द ठा हो जाता है, ठा, टेबल, द टेबल, दी टेबल नहीं, द टेबल, द टेबल आई पुट देयर, द टेबल आई पुट देयर, ऐसे करके इसको बोलना। इसी तरह से फिर अगला शब्द है, मैं कुछ वर्ब्स निकाले हैं जो हम दैनिक जीवन में बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब जब इसका यूज हम करते हैं हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, तो मैं वर्ब्स इसको लिख रहा हूं। इसमें आप देखेंगे कि यहां पर भी वही शब्द एक बीच में आ गया, ये देखिए, यही ई आ रहा ना, उल्टे वाला ये ऐसे करके घुमाया हुआ है उल्टा, तो ये AM एम, इसको एम ही बोलते ज्यादातर, आई एम कमिंग लिखा है मैंने यहाँ पे, तो आई, आ के बाद ई, आ के बाद ई, आई, पीछे लिखा एम, तो आई एम को मैंने क्या लिखा, आई एम।
ये जो एम है इसका आम, ये भी बोलेंगे आम, आई आम, लेकिन मैं आज इसके साथ कुछ वीक शब्द करवा रहा हूं। इंग्लिश के अंदर देर आर सर्टेन वीक वर्ड्स, लेकिन जिनको हम पूरा नहीं बोलते, बहुत कम खा करके बोलते हैं, तो ये शब्द एम ही बोलना होता है, यानी इसको हम केवल इतना ही बोलेंगे, एम, ओनली दिस वर्ड। तो क्या बन गया ये, ए आई को आई, आ ई, ए आई का आई, एम का केवल एम, तो ये एम नहीं बोला हमने, क्या बना, आई एम, इसका एम बना सिर्फ ए एम का, एम, आई एम कमिंग। क के बाद भी जब ये देखो क का साउंड या के लिखा हुआ, सी का, सी ओ का, सी ओ भी, इसमें कई चीजें इकट्ठी आती हैं, जैसे सी का उच्चारण कई जगह सौ होता है और कई जगह पे सी का उच्चारण क्या होता है, क होता है। जब सी के बाद ओ आता है तो क हो जाता है, सी के बाद जब ई आता है तो सा हो जाता है, सर्टिफिकेट, है ना। तो ये जो कमिंग मैंने लिखा है ये भी उसी की एक उपज है। क्या बन गया ये, आई एम कमिंग, आई एम कमिंग, ओके। तो इसी तरह से एक शब्द यहाँ पे आ रहा है ए आर ई, बड़ा बहुत बड़ा झंझट है इसको बोलने का भी, आर। अगर हम ये लिखते हैं वी आर कमिंग, एक तो सिंपल ये बोला, एक मैं भी बोलूंगा वी आर कमिंग, वी आर कमिंग। अब देखिए ये जो आर है इसका मैंने सीधा ही वीक फॉर्म लिख लिया, आर क्यों नहीं बोलना। ये दो एग्जांपल मैं और देता हूं, यहां दोनों चीजें इकट्ठी आ रही है। देखो एक तो जब भी कभी ई लास्ट में आए, ठीक है ना, ई लास्ट में, मैं हिंदी से करके बोल रहा हूं ताकि सबको ठीक तरह समझ में आ जाए, अंग्रेजी के कुछ शब्द को भी। जब हम, ये तो आप अपने पास ही रखें, जरा रेज कर रहे जो हैंड्स को, जिस वक्त भी हम ई को लास्ट में बोलेंगे, ई को जब लास्ट में बोलेंगे तो वो ई नहीं बोलना, ई जब लास्ट में आएगा डोंट स्पीक ई। जब वॉबल के बाद आर आएगा तो आर भी बोलते नहीं है, कहीं पे भी आर के बाद आएगा, जैसे समर, ई आर हो गया समर, विंटर, WINTER, ई आर हो गया तो आर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, विंटर, आर नहीं बोलना। अब यहां देखो क्या किया, ई हम लास्ट में बोलते नहीं है क्योंकि ये नियम है इंग्लिश के अंदर, और आर क्योंकि वॉबल के बाद आ रहा है इस करके आर भी बोलते नहीं है। तो फिर क्या रह गया, यही बच गया ए। इस ए को हमने पहले क्या बोला था, और इसी को तो सिखा रहे हैं आज, तो यही बच गया देखो केवल। ऐसे मैथमेटिकल है ये, बहुत सुंदर से आ रहा है ना समझ में। ये देखो ई लास्ट में नहीं बोला, आर हमारे पास ए के बाद आ रहा है, ए वोवल है तो ये आर भी गया, इसका उच्चारण भी नहीं करना होगा आपको, तो ये अ बना। एक जो हमने ये डब्ल्यू और आई लिखा है, इसका मतलब डब्ल्यू और ई है, तो हमने वी और ये अ, ये वाला अ क्या बन गया, वी आ, और ये कमिंग ऊपर वाला ये आ गया, वी आर कमिंग, वी आर कमिंग। तो वी आर कमिंग नहीं बोलेंगे, वी आर कमिंग। वी आर कमिंग में D4 कॉन्सोनेंट, ठीक है भी आऊंगा मैं उस पर, वेट फॉर दिस, मैं उस पर भी आने वाला हूं। तो इस प्रकार से आप ना स्क्रीन को ना छेड़े प्लीज। रंजीत कॉल इसमें दूसरा क्या है, प्लीज आप इसके साथ एक शब्द है CAN। देखो सी के बाद जब ए आता है और ओ आता है तो इसका उच्चारण क हो जाता है, क। सी के बाद ए आ गया, कैमरा, CAMERA, कैमरा, ठीक है। सी के बाद ए आ गया तो कैन, कैन, हो गया कैन, आ। ये JU के बाद, जे के बाद यू है, ये यू का उच्चारण होता है जू, JU, जू।
यू नहीं बोलना इसको, वाई ओ को यू नहीं, इसको क्या बोलेंगे, जे यू, जू। यू कैन गो, यू कैन गो। आ गया गो। ये ऊ जो पीछे दिख रहा है यू, ये ऊ ही लगता है जब हम गो बोलते हैं, गो गो। आराम से बोलने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे पीछे आप ऊ में जैसे उतर के जा रहे हो। यू कैन गो। तो हमने सीखा तो क्या, सिर्फ कैन के बीच में लगने वाला अ। ऐसे आगे एक शब्द और आ रहा है, इसको आप देखेंगे डज। अब ये जो डज शब्द है, डज में क्या दिख रहा है आपको, डी के बाद ओ आ गया, तो क्या बन गया, डज। डज इतना ऊंचा नहीं, डज इतना छोटा। डज इतना ऊंचा नहीं, डज इतना छोटा। मैंने लिखा है व्हाट डज ही वांट, व्हाट डज ही वांट। व्हाट, टी को ठ बोल रहा हूं, व्हाट। व्हाट डज ही को एच आई लंबा करके बोल रहा हूं, दो विसर्ग के भी लिख लिए पीछे। व्हाट डज ही वांट, व्हाट डज ही वांट। नहीं तो हम ऐसे बोलते हैं व्हाट डज ही वांट, नो, व्हाट डज ही वांट, एकदम इसको बोलना। ऐसे करके डज में भी ओ ई का ये जो उल्टा उच्चारण है ये हो गया डज। तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा भी ये कि डी ओ ऐसे क्यों, डोज भी हो सकता है। तो ऐसे एक शब्द आ गया एच ए डी, इसको सामान्यतः हैड बोलते हैं, हैड। अब जो हैड है इसका ये उच्चारण देखिए, यहाँ पे एच के बीच में एक उल्टा ये है हैड, ये इतना रह गया हैड। और केवल वीक शब्द अगर बोलना तो डी बोलेंगे, वी हैड फिनिश्ड, वी हैड फिनिश्ड। अब फिनिश्ड जो शब्द है उसमें ईडी लास्ट में आता है, लेकिन उच्चारण उसका टी होता है लास्ट में। फिनिश्ड, फिनिश्ड ऐसा नहीं बोलते, फिनिश्ड। वी हैड फिनिश्ड, वी हैड फिनिश्ड। अब वी डब्ल्यू ई को मैंने वी आई आई करके डाला इसमें, और हम डी देखो इसका निकाला हमने हैड का, ये वाला डी इस हैड का है केवल। ये मैंने ई लगाया था, लेकिन हम वीक भी बोल सकते हैं, इसका फॉर्म वो केवल डी है। जैसे विल का एल आएगा केवल, ऐसे डी आता है वुड, वुड हैड, वी हैड फिनिश, वी हैड फिनिश। इकट्ठा बोले इसको, वी हैड फिनिश, वी हैड फिनिश, वी हैड फिनिश्ड नहीं बोलना, वी हैड फिनिश्ड। तो इस तरह से हैज में भी ये शब्द आ गया एच ई जेड, ये ई उल्टे वाला, इसको हम अ बोल रहे हैं हज, और एक ई और जेड हज, ठीक है, केवल एज, एक हज एक हैज, हज ओ के साथ बोल रहे हैं, एक हम हो के साथ बोल रहे हैं। तो हम सामान्यतः ये बोलते हैं पहले वाला हैज, ही हैज, लेकिन बोल हम ये भी सकते हैं ही हैज। लेकिन वीक फॉर्म आगे वाली, जैसे डी वीक फॉर्म थी वैसे इसकी जेड वीक फॉर्म है। अगर हम इकट्ठा बोलते हैं ही और हैज को मिल करके, तो सिर्फ इतना बोलेंगे ही इज लेफ्ट, ही हैज लेफ्ट, ही हैज लेफ्ट। जेड को साथ जोड़ के बोला he has left, he has left, he has left, ऐसे भी चल रहा है काम। तो दोनों जगह वीक फॉर्म बोली जाती है। इस करके ये भी शब्द हम बच्चों को ऐसे ही सिखा सकते हैं, he has left, he has left। इसी प्रकार से एच ए वी, यहां भी मैं शब्द केवल आपको साउंड केवल यही सिखा रहा हूं, बीच वाला। ये देखिए यहां पर भी तीन प्रकार का इसका साउंड निकल के आ रहा है। एक आ रहा है हैव, हाउ, ये हम सामान्यतः बोलते हैं, आई हैव अ बुक, आई हैव गॉन, ये तो ये बोलते हैं। लेकिन हम ई वी भी बोल सकते हैं केवल, ई वी मतलब ऑफ, वी ऑफ। जो ऑफ को भी ऑफ ई वी बोलते हैं, ऑफ, ये उल्टे वाला ई नहीं है, ये शब्द ऑ ही है, उल्टे वाला ई बोल रहा हूं मैं इसमें। ये आप डिक्शनरी में देखेंगे तो ये शब्द आपको ऐसा, ये लेटर आपको उसमें शब्दों के बीच में ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। और वी, केवल वी बोलना। जब हम आई
I've, या वी बोल रहे सीधा तो I've told you। ये जो दो यहाँ पे डिप्थोंग दिख रहे हैं आपको, ई और यू, इसको डिप्थोंग बोलते दोनों वर्बल्स को। ये तो अलग तरह से सिखाएंगे, लेकिन अभी तो मैं सिर्फ ये वी जो मैंने सिखाया आपको हैव का, ये वीक फॉर्म हमने निकाल के केवल इसको क्या किया, आई को, सिंगल आई जो होता है उसको हम ए आई बोलते हैं इंग्लिश में। आई हैव टोल्ड यू। अब कितना मजा आएगा उसको बोलने में, अगर हम बोलते हैं आई हैव टोल्ड यू, काम तो चल रहा है, लेकिन इसको मैं बोल रहा हूं आई हैव टोल्ड यू, आई हैव टोल्ड यू। मैं आपको एक तो यूट्यूब के भी कुछ वीडियोस अपने शेयर करूंगा आज, तो उसको भी आप देख करके और बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन को ठीक कर सकते हैं। इसी तरह से आपके सुझाव भी चाहूंगा कि अगर आप मिलते हैं तो दैट विल बी नाइस फॉर मी। नाउ लेट अस कम हियर। ये शब्द मैंने पंजाब के अंदर भी देखा है, शब्द को IS को इज भी बोलते हैं, इज। अगर दिस इज बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, वहां तो आपको सॉय बोलना पड़ेगा, इस, दिस इस, ऐसे। लेकिन जब आपके इसको इसके साथ बोलते हैं तो इसका उच्चारण एग्जैक्टली वैसे ही होगा जैसे हमारे पास हैज का था, ही हैज लेफ्ट। लेकिन सिर्फ फर्क क्या होगा, सेंटेंस का। सेंटेंस से पता चलेगा कि वेदर यू आर स्पीकिंग इट हैज और स्पीकिंग इज। देखो ही इज हियर, ये HERE का उच्चारण है जिसको सामान्यतः हेयर बोलते हैं। हेयर में भी देखिए HERE में ई लास्ट में आता है तो वी डोंट स्पीक इट, RE के बाद आ रहा है तो इसलिए नहीं बोलते, तो HE ही बन गया। तो कुल मिलाकर के HE का मैं IE करता हूं और RE का ये हियर बोलते रहो साथ साथ में। ही इज हियर, he is here, he is here, don't speak loud, he is here, yes he is here, is he here, तो आप बोलेंगे yes he is here, ऐसे करें। he is here भी बोल सकते थे, लेकिन हम छोटा इसको बोल रहे हैं। जब बोलने में अब बोलने का, we are learning spoken, when you speak word to speak like this, he is here, all right। ऐसे करके एक शब्द आ गया शेल। शेल का यही रूप होता है शेल, ये उल्टे वाला F और ये पीछे T L लग रहा है पीछे से, तो ये उल्टे वाला जो S दिख रहा है, सॉरी जो S दिख रहा है, ये ऐसे ही है, शेल। शेल यहाँ पे इसी में ये वॉइस खपा गई, व्हाट शेल वी डू, व्हाट शेल वी डू। तो ये दोनों चीजें आगे की निकल करके केवल ये S दिख रहा है और L दिख रहा है, तो इतना शेल इसी को बोलना है, S और S ये साथ में नहीं। ऐसे एक शब्द वॉज है, वॉज को भी आप ध्यान से सुनेंगे तो इसके दो प्रोनाउंसिएशन है। एक प्रोनाउंसिएशन है, एक प्रोनाउंसिएशन को बोलते हैं इस प्रोनाउंसिएशन को बोलते हैं, एक तो बोलते हैं इसको वाज आई, ठीक है। एक बोलते हैं आई वॉज। ये जो वॉज बोल रहा हूं मैं, ये तो बिल्कुल यही वाला है, ही वॉज प्रेजेंट, ही वॉज प्रेजेंट, ठीक है। अब ही वॉज प्रेजेंट, ये वॉज मैंने छोटा बोला यहाँ पे, क्योंकि ये किसके बाद आ रहा है, सब्जेक्ट के बाद। When you use was after any subject, he was, I was, तो इसका उच्चारण छोटा करके बोलना होता, लंबा नहीं करके बोलना, was। लेकिन मैं इसी को आगे करूं कि was he present, तो was he present नहीं होगा, क्या होगा, was he present, was he present, ऐसा बोलना होगा। लेकिन पीछे बोल रहा हूं यानी सब्जेक्ट के बाद बोल रहा हूं, यानी क्वेश्चन नहीं है ये, he was present, he was present, तो he was इकट्ठा बोल करके he was present ऐसे बोल। एक झंझट देखिए इसके साथ आता है यहाँ पर वर्क के साथ। आपको सिंपल चीजें मैंने दो इसमें ये बताई है,
जो वर है WERE वर, इसमें जो ई लास्ट में है ये हम बोलते नहीं है। मैं शुरू से बोल रहा हूं कि व्हेन यू हैव ई, इसका ना के बराबर यूज है, बोला नहीं जाता लास्ट में। तो जब ई लास्ट में बोलते हैं तो नेचुरली हमारा जो उच्चारण है वो क्या होता है, ऑलमोस्ट खत्म है, नहीं बोलना इसको। आर हमारा ई के बाद आ रहा है तो आर भी नहीं बोला जाएगा, तो क्या रह गया, ये ई रह गया ना, इसका उच्चारण ये उल्टे वाला है, तो क्या बन गया वो। और मैं इसको और आपको छोटा करके बताऊंगा तो केवल वो ये वी, हिंदी का वी, विक्ट्री वाला वी बोलेंगे इसको केवल। तो देखो ये देखो वो, यू वो लेट, LEIT लेट, इसको लेट बोलते हैं, दो यहाँ पे डिप्थोंग है, ये अलग बात है करवाने का, मैं सिर्फ यहाँ पे आपको यही लिख रहा हूं कि वो क्या बोलेंगे, यू वो, यू वर लेट नहीं, यू वो लेट, यू वो लेट। तो वो केवल वो बोलना, वर को वर नहीं बोलना। तो आपने कितने शब्द आज ठीक कर लिए, या कितने शब्द हमने किए हैं, आपने तो कितने किए होंगे, हो सकता है आपको सारे ही आते हों। कितने शब्द मैंने बोले हैं ठीक करके, एक शब्द मैंने बोला वॉज, जब सब्जेक्ट के पहले बोलेंगे तो वाज होगा, सब्जेक्ट के बाद बोलेंगे तो वॉज होगा। तो ये अंतर हमने सीखा। और दूसरा वर में केवल आप वो बोलेंगे, यू वर लेट। अगर हेयर बोलना, देखो यू वर हियर, तो क्या बोलना है, यू वर हियर, यू वर हियर, कितना छोटा हो गया। और यही प्रोनाउंसिएशन में रिक्वायर्ड है। अगर आप इफ यू आर स्पीकिंग सेंटेंसेस, यू आर मेकिंग सम कम्युनिकेशन, देन यू आर रिक्वायर्ड टू स्पीक लाइक दिस। अब एक शब्द आपके पास आ गया, विल, ये इंग्लिश का विल, ही विल। ये देखो केवल एल लिखा है, इतना ही बोलना होता है इसको, एल। तो क्या मैंने लिखा, आई हेल्प यू, आई हेल्प यू। आई विल नहीं बोलने की जरूरत है, आई। ये तो बहुत सुनते होंगे हम लोग, आई, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन इतना है कि हमारे को ये बोलना इतना होता है, आई हेल्प यू। वर्ब के अंदर एक शब्द आता है वुड। अब वुड और हैड में आपको ये प्रश्न आपका बनेगा कि सर आपने वुड और हैड का, देखो ये यहाँ पर भी ऐसे ही है और यहाँ पर भी ऐसे ही है, तो ये तो एक जैसा हो गया। लेकिन फिर इसका ही अंतर होता है अंग्रेजी के अंदर, ये लंबा चौड़ा विषय करवाने का, कि जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो हैड का और वुड का यूज हमेशा ही अलग होगा। आई वुड रादर स्टे इन बेड, आई वुड रादर स्टे इन बेड। ओके, यहाँ देखो हम क्या यूज कर रहे हैं, वुड का प्रयोग ऐसे कर रहे हैं, I'd stay, I'd rather stay in bed। तो मैंने I'd, तो I had rather stayed होना था फिर। तो ये जब ये stay है तो इसका मतलब ये would है, क्योंकि मॉडल के बाद वर्ब की पहली फॉर्म आती है। तो ऐसे इसको सीखना, उच्चारण दोनों का एक जैसा है, हैड का और इसका छोटे में जब बोलेंगे। तो क्या बन गया, I'd rather stay in bed, I had rather stay in bed। मैं तो कहते बेड में ही रह जाता। ठीक है, इसके बाद देखिए कंजक्शन। लगभग लेसन आपका समाप्त होने वाला है, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस लूंगा आपके। तो ऐसे देखिए यहाँ पर एक शब्द इसमें आ रहा है, कंजक्शन के मैंने 4-5 निकाले हैं जो ज्यादातर यूज हम करते हैं। एक प्रपोजिशन करवाएंगे एंड, बस एंड को सिंपल करके एंड और एन, केवल हमने एन बोलना है, छोटा वीक, ये वीक प्रोनाउंसिएशन है इसका एन। तो मैंने क्या शब्द लिखा है यहाँ पे, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, साउथ एंड वेस्ट। एंड नहीं बोलना, बहुत बार बाजार में भी कई जगह आजकल लिखा होता है इस तरह से, साउथ एंड वेस्ट, होटल साउथ एंड वेस्ट। तो एंड बीच में एन छोटा ही लिखा होता है, ये केवल एन लिखा होता है, सिंपल। तो ये गलत नहीं है, दिस इज करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। एन नहीं बोलना आपको, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन नहीं बोलना, क्या बोलना, अप एंड डाउन, साउथ एंड वेस्ट, ईस्ट एंड नॉर्थ, ऐसे करके एंड। ऐसे हैज आ गया है, एज का अस, आई बोलना, अस,
as, try as hard as you can. देखो कितना मजा आएगा इस सेंटेंस को पूरा बोलने का। मैं तो केवल यही बता रहा हूँ, यही वाला as, ये वाले तो मैंने ऐसे ही लिखे हैं, इसके साथ तो भी आपका कोई ज्यादा लेना देना नहीं। जिनको आते हैं only those can know it, rest need not right now, just see it. तो मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, try, ट्राई को TRY को ट्राई को ट्राई बोलते हैं, ट्राई, ट्राई नहीं बोलेंगे, ट्राई, ट्राई as hard as you can, try as hard as you can, ऐसे करके सेंटेंस बना। try as hard as you can नहीं, try as hard as you can। ऐसे ही TH को थीटा मैंने पहले बोला है, थीटा इसको देखेंगे आप, TH दैट थीटा पढ़ेंगे तो बोलेंगे क्या, then he has taller than me, he has taller, 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 he is taller than me। तो आ, ये आ का उच्चारण होता है, ये वाला, ये आ है, सी उल्टा सी करके पीछे दो विसर्ग हिंदी की संस्कृत की, तो ये आ बनता है। ही इज, ठीक है ना, he is taller than me। हमने तो थीटा और ये किया ना, than me, ऐसे करके that ना बोले, that he told me that he was coming। अब पूरा सेंटेंस में ऐसे बोलूंगा, he told me that he was coming। इस शब्द में और इसमें कितना अंतर है, he told me that he was coming। अब ये भी मैंने was ही बोला, was नहीं बोल रहा हूं इसका। अब ऊपर से लेकर जितने में सीखे थे वो बीच में आने लग गया अपने, ये me, that he, ये that आ गया, ये ही हमने ऊपर सीखा था, told, told नहीं, told और बीच में आ रहा है, told, he told me that he was coming, he told me that he was coming। अब ये देखिए जितने शब्द हमने सीखे, अगर कल की क्लास हमारी होती है, I would like all of you to come live on the screen and make some paragraph where you can use these words which we done today, which we have done today. Please use those words in those sentences and then try to speak them। अब घर पे जाके अगर आप इतने जितने हमने सिखा दिए, कम से कम ये 25-30 बनेंगे, तो उसको जब आप करेंगे तो नेचुरली इसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो आपके स्पोकन पे जाएगा ही। ऑलराइट, ये मैंने कुछ प्रपोजिशन पिकअप की है। इसमें देखो पहला शब्द है एट, लुक एट द पिक्चर, लुक एट द ब्लैक बोर्ड, ये शब्द आया। तो ये जो एट शब्द है ये भी अ ही आ गया, एट, एट, लुक एट, लुक एट। जब आप लुक एट बोलते तो ठीक लगता है एट बोलते हुए, अ कस के नहीं बोलना, छोड़ के बोलना छोटा, लुक एट, लुक एट, दी नहीं बोलना, द बोलना, लुक एट द ब्लैक बोर्ड, क्योंकि ब बी कॉन्सोनेंट है, इस करके यहाँ पे TH ही आ गया, ये उल्टे वाला ये आ गया, तो ये द है, द, ये लुक है, LUK, लुक, लुक एट द ब्लैक बोर्ड। ये आपकी डिक्शनरी में लुक को देखेंगे ऐसा लिखा होगा, एट देखेंगे ऐसा लिखा होगा, द देखेंगे तो ऐसा भी लिखा होगा, पहले करवाया वो भी होगा, और ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बर्ड, ये आ है। मैंने पहले बताया था ऊपर कि सी का उच्चारण, ये जो सी और पीछे ये दूसरा साउंड है इंग्लिश के अंदर, वैसे बीच में आ गया तो मैं अलग से नहीं करवा रहा हूँ इसको, जब अलग से करवाएंगे तो नेचुरली इसकी साउंड आपको और ज्यादा अच्छी आएगी। तो कैसे बोलेंगे इसको, देखो अभी साउंड के आधार पे क्या बोल रहे हैं, लुक एट द ब्लैक बोर्ड, बर्ड लंबा जाएगा, बर्ड, लुक एट द ब्लैक बर्ड। ओके, एक मैं और बताता हूँ यहाँ पे आपको, जब हम बोल्ड बोल रहे हैं, बोल्ड, ब्लैक बोर्ड, ये बोर्ड है, बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, आ, ब्लैक बर्ड लंबा ले जाएंगे, ऐसे करके फार शब्द है, फार, एक फार होता है, एक फॉर होता है, ये वाला फॉर कर रहे हैं, जिसको
इंग्लिश में सिंपल उच्चारण इसका फॉ है। स्पीकिंग के लिए बोल रहा हूं मैं सिर्फ केवल, बाकी सामान्यतः आप बोलेंगे तो झंझट में पढ़ सकते हैं, लेकिन अभ्यास करवाएंगे धीरे धीरे करके तो you can have mastery as well. Your children will start speaking then like this. ये जो FOR है, इसका उच्चारण भी आपने क्या करना है, फो फो फो। ये देखो, this is for you, this is for you, this is for you। ये इज हमने ऊपर किया था ना, IS के साथ भी कर सकते हैं, Z के साथ भी कर सकते हैं। तो ये T थीटा हमने पहले कर दिया, इस this is for you, this is for you नहीं, यू भी गलत बोल रहे हो, इस करके JU बोलना, you, ओके। ये J भी सेमी वोवल है, इस करके दिस इज फॉर you, ओके। ऐसे नीचे आकर के एक शब्द आया है फ्रॉम। फ्रॉम में भी जो ये ओ है, इसका उच्चारण अ हो रहा है, ऊपर का भी ओ का उच्चारण अ हुआ, तो ये भी फ्रॉम। वेयर फ्रॉम यू कम, वेयर फ्रॉम यू कम। ध्यान देखो, ही वॉज कमिंग फ्रॉम दिल्ली, DELI HI दिल्ली, दिल्ली। He comes from Delhi. He comes from Delhi. He comes from, नहीं, from. He comes from Delhi. आप इन शब्दों को जो मैंने लिखे हैं, इसको डिक्शनरी में देख करके ठीक बोलने का अभ्यास करें। तो आप देखो, अगर मैं ऊपर से इसको इकट्ठा बोलता हूं, look at the blackboard, this is for you. He comes from Delhi. He comes from good. He comes from which family? He comes from good family, noble family. Okay? इसके बाद ये जो लेटर में, ये जो शब्द मैं सिखा रहा हूं या बता रहा हूं, ये शब्द आपको देखने में क्या लग रहा है, TO, टू। इस टू के दो उच्चारण हैं। एक टू तो जो हम हमेशा बोलते हैं, he wants to talk to you, talk to you, टू तो बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन कई जगह पे, जैसे I want to ask you question, यहां टू गलत हो गया, यहां फंस गया काम। क्यों फंस गया काम? इसलिए फंस गया, ये भी देखिए, स्पोकन के लिए जो प्रोनाउंसिएशन का नियम है, that speaks something different about it, and see this word is spoken as t, t को मैंने टा बोला था ऊपर भी, t, टू, ओके। बिफोर कॉन्सोनेंट वी स्पीक इट ट। जैसे मैं एक शब्द बोलता हूं, यहां देखो इसने लिखा है आई एम गोइंग टू दिल्ली, ये टू दिल्ली डी आ गया ना यहाँ पे। ये डी क्या है? ये डी है कॉन्सोनेंट, और इससे पहले टी और ये ओ, टी ओ का उच्चारण हो गया ट, ठ, और ट का ठ बोला मैंने, ठ अ, ठ। आई एम गोइंग टू दिल्ली, टू नहीं बोलना, आई एम गोइंग टू दिल्ली नहीं। ऐसे करके यहाँ टी यू हो रहा है इसका उच्चारण, ओ, ये ठीक है, टी ओ, ठीक है। मतलब इसको सामान्यतः हम बोलते हैं, ठीक, तो वही है जो मैं ऊपर बता रहा हूँ। सामान्यतः ये बोला जाता है कि बिफोर वर्बल हम इसको क्या बोलते हैं, आई एम गोइंग टू आस्क हिम अबाउट इट, अबाउट इट। ये देखो ए यहाँ, ये पड़ गया ना उल्टे वाला सी, ई यहाँ पे भी आ हो गया, अबाउट इट, आई एम गोइंग टू आस्क हिम अबाउट इट। आप जब देखेंगे तो ये बहुत जगह पे आएगा, तो आपको एक उच्चारण तो सीधा ही ठीक हो जाएगा। ऐसे जब हम 44 साउंड्स करेंगे तो कितना मजा आएगा। अब अगर 44 नहीं भी होते हैं तो आप कम से कम वॉबल के 5-10 साउंड अच्छे करें, और नहीं भी अगर वो होते तो हिंदी की डिक्शनरी आती है बड़ी अच्छी, इनकी भार्गव वगैरह की, और वेबस्टर वगैरह की भी आती है अच्छी, और एक प्रभात पब्लिकेशन की आती है बहुत शानदार, तो उसको आप देख सकते हैं, ठीक है ना, उसको देख सकते हैं। उसको देखेंगे तो उसमें प्रभात पब्लिकेशन की
एडवांस्ड इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी बोलते हैं इसको, प्रभात की, प्रभात पब्लिकेशन दिल्ली वाले हैं, बड़ी सुंदर अच्छी बनाई हुई है, काफी शब्द उसमें ठीक है। तो लीजिए अब इस लास्ट वाले को मैं ऐसे बोल रहा हूं, आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू दिल्ली। लेकिन और शब्द देखिए कितना सुंदर है टू का। हम बोलते हैं द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड अराइव टुडे इन दिल्ली, टुडे इन दिल्ली। न्यूज़पेपर में, सॉरी, न्यूज में when you listen to this word, it is always spoken to. Today news, today news. Today news नहीं बोलते, today news. The Prime Minister of England is arriving in Delhi today. The Prime Minister of India will meet Prime Minister of England tomorrow. Not tomorrow. Tomorrow. इसके भी कई शब्द है जो बीच बीच में कट जाएंगे, tomorrow के भी, tomorrow. ओ, क्या बोला मैंने? The Prime Minister of England is arriving in Delhi today. The Prime Minister of England has planned to meet him tomorrow. Tomorrow. कितना बढ़िया लग रहा है? Tomorrow नहीं बोला मैंने, today नहीं बोला मैंने, तो इसीलिए आपका प्रोनाउंसिएशन का ये रूप केवल एक संकेतिक आपका एक सिर्फ सिंबल कराने से ठीक हो गया। ऐसे अनेक शब्द हैं, जब उनको ठीक करना शुरू करेंगे तो आपको वो शब्द हमेशा ही अच्छा काम देंगे। तो अभी मुझे लगता है कि कुछ थोड़े क्वेश्चन लेने चाहिए, बिकॉज वी हैव गुड टाइम विद अस। 11:30 शायद उन्होंने मुझे कहा था, 11:30 का टाइम था ना जी, 11:30। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि जिनको सिखाया है दे मस्ट नो ऑल्सो कि हाँ हमको क्या सीखा गया है, वो कुछ लिखे सेंटेंस और बोले। लिखे पहले तो एक बार, तो मैं उसको देखता हूँ चैट बॉक्स में, तो इसको आप देखेंगे तो उससे सारा ठीक आ जाएगा सिस्टम। जस्ट वेट, आई एम कमिंग बैक। तो मैं आपका ये we are back on the screen. Yes, put a question in the chat box. जिन्हें कोई प्रश्न पूछना है, प्रशिक्षक महोदय तैयार है, आप प्रश्न पूछ सकते हैं, अपना चैट बॉक्स में मैसेज भेज सकते हैं। सर, आई हैव ए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया है सत्यम कुमार जी की तरफ से। आई एम कमिंग फ्रॉम पटना, फ्रॉम वो पूछना चाहते हैं श्रीमान आपसे, फ्रॉम बोलना बीच में, फ्रॉम। ओके, फ्रॉम नहीं बोलना, फ्रॉम। आई एम कमिंग फ्रॉम। देखो, जो आई शब्द बोलते हैं उसको हमेशा ही ध्यान में रखेंगे कि मेरे को ए और आई दोनों जोड़कर बोले आई, तो ये हमेशा आई नहीं होगा, फिर ये आई होगा हमेशा। नहीं, बहुत लोग आई भी बोलते हैं, स्लैंग बोलने के चक्कर में गलत बोल देते हैं। तो हमेशा इसको क्या बोलेंगे, आई एम कमिंग फ्रॉम पटना, आई कम फ्रॉम पटना। फ्रॉम छोटा मुंह से बोलना पड़ेगा, अभ्यास, लिखने से अभ्यास नहीं होगा, बोलने का ही अभ्यास होगा। जिन प्रशिक्षुओं को कोई प्रश्न पूछना है, अपना वो प्रश्न चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। विजय कुमार मंडल, राधा कृष्ण सरस्वती, नो दैट, थैंक यू वेरी मच। ये तो बड़ा अच्छा है कि आप थैंक्स कर रहे हैं। आई रिक्वेस्ट यू कि यू राइट, और अगर कल आप इसका कुछ पैराग्राफ बना सकेंगे तो देन वील एंजॉय इट। हम कुछ सेशन का कल कुछ पार्ट इसमें लेंगे, कुछ मैं शब्दों को कर करवाऊंगा। लिखें प्लीज, योर नंबर इज क्वाइट गुड हियर। मैंने तो काफी टाइम छोड़ दिया, 10 मिनट छोड़े थे आपके लिए भी, चलो बातचीत होगी तो अच्छा रहेगा। आप डायरेक्टली प्रश्न पूछ सकते हैं, बोलकर भी आप हैंड रेज कीजिए, मैं आपको अनम्यूट करूंगा और आप हमारे प्रशिक्षक महोदय से प्रश्न पूछ सकते हैं। जिन्हें कोई प्रश्न पूछना हो वॉइस के टर्म में, आप हैंड रेज कीजिए, मैं आपको अनम्यूट करूंगा और आप उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं।
Very nice, very nice. Honorable sir, if you teach us 44 sound, it is going to be nice. It will take at least 6-7 months. तो 6-7 महीने आप पंजाब में आ जाइए, या मैं उधर आ जाता हूँ बिहार में. सत्यम जी अनम्यूट कीजिए, सत्यम जी खुद को अनम्यूट कीजिए. हाँ बोलिए, प्रश्न पूछिए. आपकी आवाज नहीं आ रही है सत्यम जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है. Also, this is also Mr. Kashikant Jha. I request you, sir, please tell me about phonic sound also. Also, ये भी आ वाला साउंड है जो मैंने एक सी उल्टा करके बताया है और पीछे 2 विसर्ग है. Also. अगर आपका ग्रुप बना हुआ है कोई, तो मुझको ग्रुप के बीच में डाल दें, तो आप इवनिंग में भी कभी भी उसमें कुछ क्वेश्चन डालें, कुछ मैं आपको डालूंगा, फिर उसमें 1-2 दिन के लिए मुझे ग्रुप में रखें अगर इफ इट इज पॉसिबल, ताकि किसी की झिझक भी हो तो आप डायरेक्टली भी इवनिंग टाइम में आफ्टर 5 यू कैन मेक एनी कॉल एनी टाइप ऑफ टू मी. लेकिन ऐसे अगर आप पूछेंगे ना कि जैसे भी ऑल्सो पूछा, चलो मैं तो बता दिया कि ऑल्सो होगा, ये ऑल्सो नहीं होगा. इस तरह से क्या है कि फिक्स चीजें हो जाएंगी, कुछ जितना पूछा उतना आ गया. उसके बाद क्या करना कि जो डिक्शनरी को बता रहा हूं मैं आपको, प्रभात वर्णों की डिक्शनरी खरीदें या किसी और की भी अगर उस तरह की अच्छी मिलती है. देखिए प्रभात की अच्छी है, मैंने भी इसको काफी यूज किया. सर वाई वी साउंड प्लीज CZAR, सुनामी. ये जो शब्द है ना सिजार और सुनामी, ये सुनामी शब्द है भारत के इसमें तो, लेकिन जो टी लगता है पहले, ये कुछ शब्द जैसे जापान के अंदर ये ज्यादा आती है सुनामी. जापानी वर्ड है ये टू सुनामी, टी से आता है. ऐसे सिजार भी, ये साइबेरियन और जिसको रशियन सिजार विदाउट फर्स्ट लेटर. ये मैं करवाऊंगा आपको फर्स्ट लेटर के साथ कौन सा क्यों नहीं बोलते, जैसे नोक, नॉलेज, इस तरह के शब्द क्यों नहीं बोलते. साइकोलॉजी, नमोनिया शब्द पी से शुरू होता है लेकिन बोलते केवल साइकोलॉजी है. ये कल मैंने सोचा कि कल इसका थोड़ा भाग आपसे टच कराया जाए. He wants everyone to respect him. ऐसे बोले मल्टी मित्रा. He wants, want ना बोले कभी, he wants नहीं बोला, he wants everyone. अब देखिए इसमें everyone जो शब्द आ रहा है, जो मित्रा साहब ने भेजा मुझे, या दीदी होगी शायद ये, या भैया है, पूरा तो पता नहीं चल रहा कौन है. He wants लिखा है ना, everyone आगे लिखा है, तो everyone में देखो RE के बाद आ रहा है, यानी वर्ब के बाद आएगा, तो everyone की जगह पे everyone. He wants everyone to respect him. Respect. ठा पीछे बोले उल्टा करके. अब बोलेंगे तभी पता चलेगा ना कि आप कैसे बोल रहे, तो मैं उसको ठीक करूं फिर उसके बाद. He wants everyone to respect him. रॉ नहीं बोलना बीच में, वावर के बाद आ रहा तो मत बोले, अपने आप ही ठीक हो जाएगा शब्द. सर वाई वी प्रोनाउंस पुट एंड कट. हाँ ये भी आएंगे, पुट एंड कट क्यों बोलते हैं हम, ये भी वावल के साउंड है. जैसे कट, कप, ये इसमें एक ऐसा उल्टा वी दिखते हैं आपको जब आप डिक्शनरी में देखेंगे, ये उसका साउंड है, अ का साउंड है ये. Sir, I request to teach sound and silent attitude or that words alphabet because your class is very useful us. मैं कल कोशिश करता हूँ कि जो साउंड साइलेंट होते हैं वो कैसे साइलेंट, जैसे देखो जब L और D इकट्ठे आते हैं तो केवल D बोलते हैं, L साइलेंट हो जाता है. B और T इकट्ठे आते हैं तो B या T रहता है, जैसे डाउट है ना, ऐसे बोलते हैं ना, T चला जाता है. ऐसे M भी इकट्ठा आता है तो केवल बी निकल जाता है, एम रह जाता है, कॉम्ब, टॉम, थंब, ऐसे तरह के. ये शायद मैं कोशिश करता हूँ कल आपको करवा सकूँ इसमें, वो दूसरा पार्ट है.
any more questions? Anyone who would like to ask questions? वैसे तो ये जो क्वेश्चन प्रवीण चंद्रा जी भेज रही हैं, Yes, sir, sure. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द साइलेंट एंड अनवॉइस्ड साउंड। ये जो अनवॉइस्ड है ये तो हमने अपने फायदे के लिए शब्द बना दिया, वैसे तो साइलेंट ही शब्द है, लेकिन इसका भी एक अगला शब्द है म्यूट। इंग्लिश में म्यूट ही बोलते हैं इसको। वी डोंट यूज साइलेंट एंड अनवॉइस्ड, म्यूट वर्ड ओनली, व्हिच आर देयर, दे एग्जिस्ट बट दे आर नॉट प्रोनाउंस्ड। वो क्यों नहीं प्रोनाउंस होते? वो क्योंकि किसी के साथ आने के कारण से, जैसे KNOW है, जब K के साथ N आएगा तो W KN के साथ आने के बाद K या N ही रह जाएगा केवल। goes गौ में अ जो मैंने आज वाला करवाया, UTE वाला अ, फिर U और Z, goes, he goes to school। सर कुंदन कुमार जी ने लिखा है, सर हाउ टू प्रोनाउंस he goes to school। he goes to school, he भी लंबा नहीं बोलना, he goes to school। अब जो 2 मैं बोल रहा हूं, इसको देखिए आप, 2 मैं गलत बोल रहा हूं, आप पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं, मैं गलत बोल रहा हूं। मैं क्या, मुझे बोलना क्या चाहिए, he goes to school। 2 नहीं आएगा शब्द यहाँ पर, तो 2 शब्द ठीक हो गए, goes ठीक हुआ और एक शब्द आपका 2 ठीक हुआ, क्योंकि स्कूल ऐसा है, ये कॉन्सोनेंट है तो इससे पहले 2 का ठ। he goes to school। ये जो बुक है इसकी, आप स्पोकन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से, एक डॉक्टर बांसल है हैदराबाद इंस्टीट्यूट के, तो रिटायर्ड के अब तो दुनिया होंगे भी नहीं शायद वो, उनकी एक बनी बुक है बहुत शानदार, स्पोकन इंग्लिश फॉर इंडिया। उस स्पोकन इंग्लिश ऑफ इंडिया में अगर कोई फोनेटिक्स को जाने वाले आप में टीचर्स है, स्पोकन इंग्लिश के टीचर्स है कोई अच्छे, तो वो उसको पढ़ेंगे तो उनको तो पढ़ाना आगे बहुत सरल हो जाएगा उसको पढ़ने के बाद। ये MA के अंदर जो फोनेटिक्स करते हैं तो इवन दिस बुक इज टॉट, उसका कुछ भाग किया जाता है। एक डॉक्टर वार्ष्णे हैं, गुरुकुल कांगड़ी के प्रोफेसर है, उन्होंने वैसे फोनेटिक सिंबल के ऊपर बड़ी अच्छी बुक बनाई है, तो वो साउंड उसमें सारे मिलेंगे, कुछ आप इधर उधर देख देख के ठीक कर सकते हैं। हाँ, ये बड़ा बढ़िया शब्द दिखा है एक भाई ने, समोश कुमार झा, प्लीज टेल मी अबाउट एक्सेंट। एक्सेंट, ACENT, एक्सेंट। अब देखो इसमें A के बाद C आया तो एक्सेंट, आगे C के बाद E आ गया तो 100 शब्द हो गया उच्चारण। एक्सेंट, A के बाद C आया तो क हुआ, C के बाद E आ गया तो 100 हो गया, एक्सेंट। what is the accent of this word, accent? ऐसे जो सुमेश कुमार झा लिख रहे हैं कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोनाउंस, मतलब प्रोनाउंसिएशन पूछ रहे हैं। देखो एक शब्द है वुमेन, WOMAN, वुमेन, इसको बोलते हैं वुमैन, वुमेन। जो आगे WEN है, यानी जो वुमेन शब्द है इसका उच्चारण प्लूरल वाला है, जो प्लूरल वाला उच्चारण है वो ऐसे है, WOMEN, इसको बोलते हैं वीमिन, WIMIN, बस क्लियर हो गया। वुमेन, वीमेन, विमेन एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट नहीं, लोगों को लगता है मैं प्लूरल बोल रहा हूं, बट दैट इज रॉन्ग। स्पीक ऑलवेज विमेन एम्पावरमेंट, वीमिन, WIMIN, ये इसका उच्चारण है, विमेन। हाँ, they were playing cricket, they were playing cricket, cricket। सी के बाद जब आर आता है तब भी कौ बोलते उसको, सी के बाद ओ आया तो कौ, सी के बाद आर आया तो कौ, सी के बाद ए आया तो कौ, तो क्रिकेट ऐसे बोला। I'll be better for everyone if all teachers let different sounds. Meant and mean, how to pronounce? ये तो बड़ा इजी है, meant, M-N-T, meant, M-E-N-T, meant, how to pronounce, meant and mean। mean में थोड़ा नंबर ले जाना पड़ेगा क्योंकि E-A आ गया तो इसमें I के बाद 2 विसर्गे पड़ती है तो उसका साउंड ज्यादा होगा, ऊपर वाला कम होगा, meant and mean।
एक शब्द मैन है, एक शब्द मेन है। मैन, मैन मेड बैरियर्स, men have achieved everything. Men, men, men. It cause, सी के बाद जब ए आता तो ख हो जाएगा, ख, क्योंकि सी क कोई शब्द नहीं है अंग्रेजी के अंदर। तो क्या बोला इसको? इट cause day and night. वेरी गुड, ये अच्छा लिखा मित्रा, वेरी नाइस, यू आर राइटिंग वेरी गुड। इट cause day and night. It causes, that भी आएगा पीछे, it causes day and night. Day and नहीं बोलेंगे and, it causes day and night. How is it possible? How is it possible? How is it possible को क्या बोलेंगे? Possible. How is it possible? ऐसे how to pronounce ललित कुमार सिंह, pronounce ask and asked. ये जो ask शब्द है थोड़ा लंबा आ करके बोलेंगे ask। जब पीछे बोलेंगे डी को केवल डी बोलना है, asked, ई छोड़ दे बीच में से, यहाँ पे asked ऐसे बोले, asked। He asked me a question. He asked me a question। लेकिन ई भी वालों को लंबा करके जरूर बोलना चाहिए। He promised me, he asked me a question। हाँ, yes, Mr. Pankaj Kumar Pandey ji, sir, kindly tell us what is diphthong. Diphthongs are those letters, words when there are two letters. जैसे stay मैंने बोला, stay, तो stay का जो उच्चारण है वैसे तो STAY है, लेकिन stay को जब अंग्रेजी की प्रोनाउंसिएशन में देखेंगे तो क्या बनेगा? STEI, stay। तो stay ऐसे करके बोलेंगे तो वो दो डिप्थोंग होते हैं। जब वॉबल आते हैं दो इकट्ठे तो वॉबल के साथ वो क्या होते हैं, वो क्या बन जाएगा? डिप्थोंग। 8 डिप्थोंग है, प्योर वॉबल्स है 8। सो व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन द एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट? ये तो क्लियर ही है, एक एक्सेप्ट है, एक एक्सेप्ट है। आपको मैं बीच वाला जो जैसे EXCPT के बाद बोल रहे हो ना, तो यहाँ बंदा फंस जाता है कि एक्सेप्ट ही होगा कि एक्सेप्ट होगा। CPT आ रहा है तो 100 हो रहा है, ऊपर में 100 हो रहा है, लेकिन पहले एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट। पुट एंड बट तो उसी में आएगा, जो पुट और बट पहले आपको क्या था, जो जिसमें बट, पुट, बट, BUT के लिए एक साउंड है। मैं तभी कह रहा हूं कि इंग्लिश इज अ लैंग्वेज ऑफ साउंड। ये ऐसे देख करके आप इसको ठीक नहीं कर सकोगे कि जो एक के लिए आए दूसरे के लिए भी आएगा। इसके जो शब्द, जितने शब्द हैं, जितने वर्ड्स हैं, उन सबका प्रोनाउंसिएशन सेट है। उसमें बीच में क्या लगेगा, बाद में क्या लगेगा? एंथुसियाज्म, एंथुसियाज्म, नॉलेजेबल। अब देखो नॉलेज में मैं बताता हूं आपको कितने शब्द इसमें साइलेंट हो रहे हैं। A person is very knowledgeable, enthusiasm। ये शब्द देखो नॉलेज में एक तो K साइलेंट है तो नो रह गया, W भी साइलेंट है, LDG नॉलेज, D भी साइलेंट है, इसमें 3-4, E भी साइलेंट है, 5 लेटर्स में साइलेंट है। तो ऐसे बोलिए नॉलेज एंड एंथुसियाज्म, एंथुसियाज्म, ENTH, एंथुसियाज्म। ये थू तब बोला जाएगा आपसे अगर आपने TH को थीटा से शुरू किया बोला। टाइम ज्यादा हो गया सर, नहीं मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, आई विल फिनिश। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, सो नाइस। संचालक महोदय रविंद्र मिश्रा जी, ओवर टू यू। Well, thank you very much, sir. We are honored and blessed that you gave your valuable time, your valuable suggestions, the keynotes to pronunciation, everything. A big thank you to you, and we will have some more sessions of yours certainly in your future. Now, I feel honored to and humbled to request the Adhyaksh Mahoday of today's Prashikshan Varg
to give his presidential address. Honorable Adhyaksh Mahoday. आदरणीय आज के अध्यक्ष महोदय, हम सबको अपना आशीर्वचन प्रदान करें। चलो कहीं बैठो नहीं। म्यूट कर लीजिए प्रवीण जी। माननीय म्यूट करें, अनम्यूट करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, अनम्यूट कीजिए खुद को। आज के माननीय अध्यक्ष श्रीमान जी भरत कुमार पूर्वे जी सौभाग्य है हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। श्रीमान से निवेदन है। आवाज आ रही है? श्रीमान जी आ रही है श्रीमान, आवाज आ रही है? जी आ रही है। आज का कार्यशाला में प्रशिक्षण वर्ग में उपस्थित सभी अधिकारी, अनम्यूट कीजिए गुरुजी। गुरुजी अनम्यूट। अध्यक्ष महोदय अनम्यूट कीजिए खुद को, अनम्यूट किया जाए। अध्यक्ष महोदय अनम्यूट कीजिए। जी अब बोला जाए। हाँ हाँ, अभी कार्यशाला में लगभग 40-45 मिनट से गुरुदेव अध्यक्ष महोदय आपने फिर म्यूट कर लिया। म्यूट नहीं करना है, आप अनम्यूट किया जाए। अनम्यूट अनम्यूट। जी अनम्यूट होगा। हाँ जी, ये हम 40-45 मिनट से कार्यशाला में उपस्थित थे। अभी आचार्य लोगों का, छात्रों का जो प्रश्न हुआ उसका समाधान उनके द्वारा किया गया, बहुत अच्छा लगा। मात्र हम दो ही बिंदु पर अपनी बात यहाँ रखना चाहेंगे। पहला ये, हम लोग जानते हैं जो अंग्रेजी को जिस रूप में लिया जाना चाहिए था वो शुरू से वैसा नहीं हो पाया। हम अभियंता हैं, 50 साल पहले जब हम इंजीनियरिंग कॉलेज में नाम लिखाए थे, उस समय जो अंग्रेजी की पढ़ाई की जो स्थिति थी वो जिस प्रकार था, आज उससे बहुत भिन्न है। और उसमें अधिकांश आचार्य लोग जानते होंगे, जो अभियंता खास करके अंग्रेजी में उतना अच्छा उनका नहीं रहता है, वो अंग्रेजी में अच्छा नहीं करते हैं। उनका चूंकि मैथ प्रमुख रहता है इसमें, और सब लोग जानते होंगे जो मैथ का स्टूडेंट जो होता है वो अंग्रेजी उसका अच्छा नहीं भी रहे फिर भी वो अच्छा कर सकता है, क्योंकि उसमें अंग्रेजी की बहुत प्रधानता नहीं रहती है। अब जैसे कि हम लोग ये भी जानते होंगे जो इंजीनियरिंग में 80% मैथ रहता है और मात्र 20% ही थ्योरी रहता है। इसीलिए ऐसे छात्र जिनका अंग्रेजी कमजोर भी रहता है फिर भी वो इंजीनियरिंग में अच्छा करता है। और ऐसा पहले था, पहले वही 50-40 साल पहले अंग्रेजी जिनका कमजोर भी रहता था जिस छात्र का, वह भी इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा करता था। परंतु अब थोड़ा समय बदल गया। बीच के कालखंड में दुर्भाग्य ये रहा, जो अंग्रेजी को लोग तरह तरह के कंट्रोवर्सी में डाल दिए। जैसा कि सब हम लोग जानते हैं, विदेशी भाषा है, गलत इसका असर होता है, अंग्रेजी हटाओ, कई तरह की ये कहिए जो 40 के बाद 50, 60, 70
70-80 के दशक में तो बहुत अधिक हुआ अंग्रेजी का विरोध करना। ये सारा राजनीति के कारण जो है सो अंग्रेजी को जिस रूप में देखना चाहिए था उस रूप में लोग नहीं लिए, समाज उस ढंग से नहीं लिया पाएगा, उसका मात्र राजनीतिक कारण था। एक बात जरूर अच्छी है, जो विद्या भारती अंग्रेजी को पहले जिस रूप में लिया था आज भी वही रूप में ले रहा है। विद्या भारती में कोई चेंज, ये बदल नहीं है, परंतु समाज में अंग्रेजी के प्रति एक गलत धारणा बनाने के कारण उसका असर छात्रों पर भी पड़ा, और खास करके हिंदी भाषी क्षेत्र के छात्रों को पर तो इसका बहुत अधिक असर पड़ा। ये जानने की समझने की बात है जो अंग्रेजी एक भाषा है, उसको कोई देश विदेश कहीं से जोड़ने की हमको नहीं लगता उसकी आवश्यकता थी। भाषा का ज्ञान होना अच्छी बात है, और हम ये जानते हैं जो अंग्रेजी भाषा जो है वह जो है सो 50 से अधिक देशों का ऑफिशियल लैंग्वेज है, और आज के युग में तो अंग्रेजी का कुछ और अधिक महत्व है, क्योंकि चाहे कॉर्पोरेट जगत हो और अच्छे अच्छे जगह यदि कोई जाना चाहता है नौकरी में तो अंग्रेजी जानना, और अंग्रेजी जानना ही नहीं, अंग्रेजी में उसका कम्युनिकेशन अच्छा होना जरूरी है, जो कि पहले उस तरह की बात नहीं थी। अंग्रेजी कमजोर भी है, वो बढ़िया बढ़िया क्षेत्र में वो जाता था, लेकिन अब तो बहुत क्षेत्र भास्ट हो गया है, और हम जानते हैं जो दुनिया में अधिकांश देशों के लोग, बहुत सारे लोग अंग्रेजी जानते हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं। वो अलग बात है जो कुछ देश ऐसा है जिसका कि अपना विज्ञान, जैसे कि चीन हुआ, रूस हुआ, जर्मनी हुआ, जापान हुआ, ये लोग अपना विज्ञान और वहां के भाषा में डेवलप किए। जैसे ऐसा अपने देश में नहीं हो सकता, कई कारणों से नहीं हो सका, उस कारण में हम लोग नहीं जानना चाहते हैं। लेकिन जो अपने देश का जो अधिकांश बोलने वाली भाषा हिंदी हो, इस भाषा कम्युनिकेशन हो, इस पर जोर दिया जाता है। उसको बाकी कंट्रोवर्सी से मतलब नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह कंट्रोवर्सी हम लोग को बहुत क्षति कर चुका है, और आज के समय में हम और पढ़ाने की जो विधि भी है वो अंग्रेजी का बहुत बदल गया। पहले जो विधि थी हम लोग के समय में एलिफेंट माने हाथी, काऊ माने गाय, ये रटा जाता था। अब वो स्थिति नहीं है। काऊ ये जो जानवर है, काऊ है, ये एलिफेंट है, ये अम्ब्रेला है, उसको उसी रूप में हम लोग पढ़ते हैं। वो रटने वाली जो बात थी वो समाप्त हो चुकी है। इसीलिए अंग्रेजी शिक्षा का भी स्वरूप बदल गया है, और अपने यहाँ तो अभी जो नई शिक्षा नीति में तो और उसमें डेवलपमेंट हुआ है भाषा के दृष्टि से। ये बात अलग है जो प्राइमरी एजुकेशन होनी चाहिए मातृभाषा में, लेकिन अंग्रेजी भाषा का जो अपना एक महत्व है ज्ञान के लिए, विज्ञान के लिए, आगे बढ़ने के लिए, कॉर्पोरेट क्षेत्र में जाने के लिए, वह महत्व तो कमेगा नहीं और निकट भविष्य में भी कमना नहीं है। इसीलिए हम शिशु मंदिर में भी अंग्रेजी को उसी रूप में और उस भाषा के रूप में जिस भाषा को जानना जरूरी है समाज के विभिन्न क्षेत्र में अपना विकास के लिए, और इसलिए हम लोग अंग्रेजी को उतना ही महत्व देते हैं। बाकी चीजों को न ध्यान देकर एक भाषा है जिसका एक महत्व है, जिसको जानना जरूरी है, और उसकी पढ़ाई की जो स्वरूप है वह जो आज के समय में जो होना चाहिए उस रूप में हम लोग
कर रहे हैं और बहुत अच्छी बात है। जो अभी जो देखे हैं, जो शिक्षक भी काफी इसमें आगे बढ़ चुके हैं, जो किस ढंग से पढ़ाई अंग्रेजी की होनी चाहिए। और हम यही आज अपेक्षा करेंगे अपने आचार्यों से जो इंग्लिश के हैं, वो भी नई टेक्नोलॉजी जो पढ़ाई की है अंग्रेजी में, बच्चों को स्किल डेवलपमेंट के दृष्टि से कम्युनिकेशन उसका अच्छा हो सके, उस दृष्टि से जो भी टेक्नोलॉजी है उसका सहारा लेकर के हम लोग अंग्रेजी की शिक्षा अच्छे ढंग से अपने छात्रों को दें। आज यही कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। प्रशिक्षक संचालक महोदय, संचालक। Thank you. Thank you. Srimati Monica ji from Siwan, Vijayhata. Good morning, everyone. Praveen sir, please mute yourself. Praveen sir. Good morning, everyone. खुद को अनम्यूट कीजिए। मोनिका जी अनम्यूट कीजिए। It is such an honor for me to get the opportunity to thank you all dignitaries. I would like to express my gratitude to all esteemed delegates of the workshop for their presence and the contribution to make this program a great success. I extend my gratitude to our honorable chief guest for the guest lecture. And sir, I'm very much thankful to you. And I want to say that I have met to you before at your school, Maler Kotala. It was a Kabaddi tournament, sir, and Nakul sir was also there with me. So I am very much thankful to you. I want to express my gratitude to you that your support and you shared wonderful words, wonderful knowledge to us, information to us. And your presence and contribution to make this program a great success. I extend my gratitude to our Presider, Shri Bharat Purveji, to take out time from his busy schedule to grace the event. Thank you for all inspiring and encouraging us with your words. A special thanks to Shri Nakul Sharma ji, our Pradesh Sachiv, Lok Shiksha Samiti Bihar, for providing immense support to make the program successful. I extend my gratitude to Shri Prem Singh Khemta ji to guide us. I must thank the organizing team, volunteers for working hard for the past few days to make the event successful. My special thanks to Lalit sir, to Nakul Sharma sir, Lalit ji, Praveen sir, Lakhindra Kumar Singh ji, and Lakshmikant ji, Shashikant ji, Shashank, and Akhilesh ji. I am very much thankful, and a special thanks to all of you who shows the torch for the event, and I congratulate the team for active participation. Thank you everyone once again for making it a great success. Thank you very much. संचालक महोदय प्रवीण जी, over to you. Very invitation for all of us. The next session of this spoken English training work is going to be held from 12 p.m.
आप इसी लिंक पर क्लिक करके उस वर्ग में ज्वाइन करेंगे। 12 बजे से यह वर्ग आरंभ होगा। ये थोड़ा समय जो बीच में दिया गया है वो फ्रेश वगैरह होने के लिए है। आप फ्रेश हो सकते हैं, पानी वगैरह पी सकते हैं, एंड यू कैन ज्वाइन। Yourself, Praveen ji, unmute yourself, then speak, please. Now, I would like to invite Balika Siwan Vidyalaya for the Shanti Mantra. And with Shanti Mantra, this session will come to an end. And we will join again in the next session at 12 p.m. Balika, Saraswati Balika Vidya Mahavir, Saraswati Balika Vidya Mandir, Siwan, please come up with the Shanti Mantra. सर नाम बताएंगे? प्रवीण जी नाम बताइए, कौन कराएंगे शांति मंत्र? स्कूल का नाम? उस विद्यालय से कोई एक दीदी जी कराएंगी। उनका नाम प्रधानाचार्य जी को कहा गया था। सर उनका नाम बताइए। प्रवीण जी उनका नाम बताइए। बालिका विद्या, इस नाम से कोई नहीं जुड़े हैं बालिका से, आप उनका नाम बताइए ना। अंजलि जी, प्लीज कविता बढ़। बालिका शिवान से के नाम से कोई नहीं जुड़े हैं शिवान, और किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है। ये जो प्रोग्राम आया है मेरे पास किन्हीं का नहीं है। शांति मंत्र आप ही करवा दीजिए प्रवीण सर जी। तो ये दायित्व दिया, कोई बात नहीं, मैं ही करवा देता हूँ। जी जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। थैंक यू।